Hello students, in today's lecture we are going to discuss naming of alicyclic compounds. Alicyclic compounds are also known as aliphatic cyclic compounds. As you can see, the word alicyclic is composed of two words, that is aliphatic and cyclic. So what are alicyclic compounds? These are the compounds which contain one or more rings or cyclic chains containing three or more carbon atoms. And secondly, they resemble aliphatic compounds in their characteristics. Since their properties are similar to aliphatic compounds, therefore they are called as aliphatic cyclic compounds, or in short, they are called as alicyclic compounds. Now, what are the rules for writing the IUPAC names of these compounds? We will discuss in this lecture. So first of all, the new rule that will be used in case of alicyclic compounds is the use of the primary prefix. जिन कंपाउंड्स की हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली है while discussing IUPAC naming, उनमें किसी भी केस में अभी तक हमने प्राइमरी प्रीफिक्स की बात नहीं की थी, लेकिन ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनमें प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होगा, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? वो है साइक्लो. एंड दिस वर्ड साइक्लो इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट. एंड व्हाट डज द वर्ड रूट represent in these cases? The word root corresponds to the number of carbon atoms in the ring. Now the ring or the cyclic chain in these cases will behave as the parent chain. And word root, we know that it corresponds to the number of carbon atoms in the parent chain, or we can say it is the number of carbon atoms in the ring. So before the word root, the primary prefix cyclo will be used in these compounds, that is alicyclic compounds. For example, I have written three compounds here. In these three compounds, you can see these are cyclic in nature. In the first case, the ring contains three carbon atoms, and therefore the name of this compound will be cyclopropane. Here you can see that the word cyclo appears before prop. The prop word is the word root, and after which you can see there is ane, and this ane represents the ane represents the primary suffix. So here in this compound there are three parts. There is cyclo, that is the primary prefix, then there is prop, that is the word root, and then there is ane, that is the primary suffix. In the second compound you can see there is cyclo, then there is but, and then there is ane. Cyclo is the primary prefix, but is the word root because the ring contains four carbon atoms, and ane is the primary suffix. Similarly, in the next compound, the name becomes cyclopentane because here there are five carbon atoms, and in the next compound, the name becomes cyclohexane. So in this way, the primary prefix cyclo is used in these compounds. Now, if a cyclic ring contains
only one substituent, then the position of that substituent is not mentioned. It means कि जब किसी साइक्लिक चेन के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हमें उस साइक्लिक चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाई? क्योंकि उस कार्बन एटम को जिस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा उसको हर हाल में नंबर 1 ही मिलना है। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में जो रिंग है उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं और ये जो साइड चेन है यहाँ पर ये है CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप। अब चूंकि रिंग के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब हमें यहाँ पर इस रिंग की नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप किसी भी पोजीशन पर हो उस पोजीशन को हर हाल में नंबर 1 ही मिलेगा। चाहे ये मिथाइल ग्रुप किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, 5 में से किसी भी एक पोजीशन पर अगर वो मिथाइल ग्रुप होता, इन एवरी केस दैट कार्बन एटम वुड हैव बीन गिवन पोजीशन नंबर 1। इसलिए यहाँ पर हमें उस 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नाम क्या बनेगा? यहाँ पर नाम बनेगा मिथाइल। ये मिथाइल क्या बना? ये बना सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। मिथाइल आ गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, प्राइमरी प्रीफिक्स भी यहाँ पर यूज होगा और प्राइमरी प्रीफिक्स होगा साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट आएगा पेंट, क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं इस रिंग में, और उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, और चूंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड नहीं है इसका मतलब है कि सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट है। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बन गया मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और आपने देखा इस मिथाइल की पोजीशन हमने मेंशन नहीं की। अदरवाइज अगर ऐसा ही केस हमें किसी ओपन चेन कंपाउंड में मिलता, वहां पर हम इस मिथाइल की पोजीशन इससे पहले जरूर मेंशन करते थे। सिमिलरली इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड में भी एक साइक्लिक रिंग है जिसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर इथाइल ग्रुप है। और चूंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इसका मतलब यहाँ पर भी पैरेंट चेन की या साइक्लिक चेन की नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नाम क्या बनेगा? यहाँ पर सबसे पहले इथाइल ग्रुप का नाम आ जाएगा एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, कोई पोजीशन हमने मेंशन नहीं की, इथाइल। उसके बाद आएगा cyclohexane। So this is the case when there is only one substituent attached to the ring. अब अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं रिंग के साथ, इस केस में नंबरिंग करना जरूरी हो जाता है। अब यहां पर जो नंबरिंग होगी वो किस तरह से होगी? वो अरेबिक न्यूमरल से, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा, इस तरह से नंबरिंग होगी। और किसकी नंबरिंग होगी? पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन कौन सी होगी? पेरेंट चेन होगी द साइक्लिक चेन। अब यहाँ पर एक चीज तो हमने याद रखना है कि नंबरिंग हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं एक रिंग में। लेकिन हमने जो रूल हम पढ़ चुके हैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंस का जो रूल हमने पढ़ा था, उस रूल को हमने फॉलो करना है।
चाहे हम नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें, बट वी विल हैव टू फॉलो द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंस रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस केस में देखें, यहां पर आप देख सकते हैं पेरेंट चेन, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है एज सब्स्टिट्यूएंट और एक इथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। अब यहां पर चूंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस केस में नंबरिंग करना जरूरी हो जाता है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? अब देखिए, नंबरिंग हम या तो इस कार्बन एटम से कर सकते हैं जिस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच्ड है, मतलब हम नंबरिंग इस तरह से कर सकते हैं कि इस कार्बन एटम को हमने 1 दे दिया जिसके साथ मिथाइल अटैच था। अगर इसको हमने 1 दे दिया तो इस कार्बन को हम 2 देंगे जिसके साथ इथाइल अटैच्ड है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और फिर 5। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है इसके अपोजिट। इसके अपोजिट मतलब जिस कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसको हम नंबर 1 दे दें, और जहां पर मिथाइल ग्रुप है उसको नंबर 2, और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3, 4 और 5। अब इन 2 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन होगी जो सही होगी? देखिए, एक नंबरिंग जो मैंने की है जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, और जो दूसरी नंबरिंग में कर रहा था वो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है। दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 2 आ रही है। चाहे मैं ग्रीन कलर वाली नंबरिंग की बात कर लूं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, या जो रेड कलर से मैंने एक्सप्रेस किया है उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 2 आ रहा है, और जिसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक चेन। अब चूंकि दोनों केसेस में नंबरिंग सेम आ रही है, तो क्या ये दोनों नंबरिंग्स सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं, या फिर ये दोनों डिफरेंट हैं? तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, जैसे पहले भी हमने ऐसे जैसे केसेस डिस्कस किए थे, इसमें हम देखेंगे कि क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है या डिफरेंट। तो चूंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, तो हम जानते हैं ऐसे केसेस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। इसका मतलब हम वो नंबरिंग चूज करेंगे जिसमें इथाइल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो, और वो किस में मिल रहा है? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने नंबरिंग की थी उसमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो सही नंबरिंग यहां पर है वो क्या है, जो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से डिनोट किया था। तो जो करेक्ट नंबरिंग है उसको मैं इस तरह से एनसर्कल कर रहा हूं। अब हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आ जाते हैं। हमारे पास पोजीशन नंबर 1 पर इथाइल ग्रुप है, तो हमने लिखा 1 इथाइल। उसके बाद पोजीशन 2 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल आ गया। ये हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया साइक्लो, और उसके बाद आ गया वर्ड रूट, आ गया पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि यहां पर नहीं है तो नाम यहीं पर कंप्लीट हुआ। आईयूपीएसी नेम बन गया 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली इस केस में हम देखेंगे यहां पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं,
और वो दो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल ग्रुप्स। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पर अटैच्ड हैं। इसका मतलब है कि हम उसी पोजीशन से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो जिस कार्बन के साथ, रिंग के जिस कार्बन के साथ ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, उसको हम देंगे नंबर 1। अब चूंकि कोई और सब्स्टिट्यूएंट किसी दूसरी पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हम 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी पोजीशन को लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, तो बात एक ही है। तो इस तरह से अब हम जब नाम लिखेंगे इस कंपाउंड का, तो वो कैसे होगा? नाम आ जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, यह आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आ गया प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट आ गया हेग्स, और प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्योंकि एब्सेंट है, तो ये नाम बन गया 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस केस में देखिए, फिर से हम ऐसा ही एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास एक रिंग है 6 मेंबर्ड, और इसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। 2 मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पर अटैच्ड हैं, और एक इथाइल ग्रुप एक दूसरी पोजीशन के साथ अटैच्ड है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो साइक्लिक रिंग है उसकी नंबरिंग कहां से होगी। नंबरिंग के लिए हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं कि हम उस कार्बन से स्टार्ट करें जिस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, मतलब हम इस पोजीशन को 1, और फिर यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलें तो 2, 3, 4, 5 और इस तरह से 6। अगर हम ये नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है 1, 1 और 3। 1 हमने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि पोजीशन नंबर 1 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसको हमें 2 बार मेंशन करना पड़ेगा 1, 1, और जो इथाइल ग्रुप था वो 3 पे था, तो हमने लिखा 1, 1, 3। इसके मुकाबले में अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते इस कार्बन से जिसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको हम अगर नंबर 1 पोजीशन असाइन करेंगे, उसके बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 3, और उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहेंगे 4, 5 और 6। अगर हमने ये नंबरिंग कर ली तो इस केस में हमारे पास जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या मैं कहूँगा सेट ऑफ लोकेंट्स, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 1, 3 और 3, क्योंकि 1 के ऊपर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और 3 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 1, 3, 3। अब जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दैट रूल इन दोनों में से जो लोवेस्ट सेट है वो है 1, 1, 3, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया था इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हमने लिखा था। तो जो सही नंबरिंग यहाँ पर है वो कौन सी है? ये जो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग की थी। अब हम नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? नेमिंग में आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इथाइल का नाम, और उसकी पोजीशन है इथाइल ग्रुप की पोजीशन है 3, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद पोजीशन नंबर 1 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हम लिखेंगे 1, 1 डाइमिथाइल, और उसके बाद आ जाएगा हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, और साइक्लो के बाद वर्ड रूट आ गया हेग्स, और प्राइमरी सफिक्स आ गया एन। इस तरह से नाम बन गया 3 इथाइल 1, 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
अगला रूल है इफ ए मल्टीपल बॉन्ड एंड सम अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग। मतलब अभी तक जो हमने केस डिस्कस किए उनमें सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद थे, लेकिन अब अगर कोई ऐसा केस हमारे सामने आ जाए जिसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो रिंग में अपार्ट फ्रॉम सम सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग किस तरह से करेंगे, नंबरिंग में हम अब प्रेफरेंस देंगे उस मल्टीपल बॉन्ड को। इसका मतलब है दैट वी विल असाइन द लोवेस्ट नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर अब हम सब्स्टिट्यूएंट को इग्नोर करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम उस जगह से नंबरिंग करें जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखिए, जो साइक्लिक चेन है 5 मेंबर्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसके अलावा इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट हैं, एक मिथाइल और दूसरा इथाइल। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने रिंग की नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब यहां पर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नंबरिंग इस तरह से होगी। जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन हैं उन दोनों को 1 और 2 मिलेगा। एक तो ये तरीका है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, मतलब अगर हम ऐसे चले, यहां से हम स्टार्ट करें 1 और फिर यहां पे 2, फिर 3 और यहां पे 4 और यहां पे 5। अगर हम ये नंबरिंग करें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलें, तो क्या होगा, दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आ रही है। मतलब डबल बॉन्ड जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन तो लोवेस्ट है, बट सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को भी अब हम चेक करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जो पहला केस हमने डिस्कस किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो मैंने इस रिंग के बाहर से जो मैंने नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या आ रही है, वो आ रही है 3 और 4। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने नंबरिंग देखी, जो रिंग के अंदर से मैंने लिखी थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से हम चले तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है वो है 4 और 5। तो आप देख सकते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल के मुताबिक जो लोवेस्ट सेट है वो कौन सा है, वो है 3 4। इसका मतलब है कि नंबरिंग जो हम कर रहे हैं वो कौन सी सही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने नंबरिंग की थी वो नंबरिंग सही है। मतलब जो रिंग के बाहर से मैंने नंबरिंग लिखी हुई है वो सही है। तो ये जो रिंग के अंदर मैंने लिखी थी एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग, उसको मैंने इरेज कर लिया है। अब हम इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास 2 है, एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है। तो चलो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे 4 इथाइल, और 3 मिथाइल, या आगे सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आप जानते हैं यहां पर यूज होता है साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं चेन रिंग में। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यहां पर क्या यूज होगा, प्राइमरी सफिक्स यहां पर इन यूज होगा, जिसकी पोजीशन है 1, तो हमने लिखा 1 इन। सेकेंडरी सफिक्स जो लास्ट पे आता है वो यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इस तरह से नाम बन गया 4 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। अगले कंपाउंड पे हम चलते हैं। अगले कंपाउंड में हम देखेंगे फिर से कि जो हमारे पास रिंग है 6 मेंबर्ड है, उसमें एक डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास कितने हैं
सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास हैं फिर से 3। एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम नंबरिंग करेंगे पैरेंट चेन की, उसमें हमने क्या देखना है, हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोवेस्ट पॉसिबल रखना है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट पॉसिबल कैसे आती है, या तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 और फिर 2 फिर 3 4 फिर 5 और फिर 6, ये आ गया इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो दूसरी नंबरिंग, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दोनों में से करेक्ट नंबरिंग क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन आप देख सकते हैं दोनों केसेस में, चाहे हम क्लॉकवाइज चलें या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलें, दोनों केसेस में डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 आ रही है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन किस केस में सबसे कम है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को देखिए आप, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूं, इस तरह से अगर मैं नंबरिंग करता हूं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या आ रही है, सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट मतलब इथाइल आ रहा है नंबर 1 के ऊपर, और जो बाकी के 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आ रहे हैं पोजीशन नंबर 5 के ऊपर। तो सेट ऑफ लोकेंट्स बन गया 1 5 5। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, ये जो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग देखी, इसके मुताबिक सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या आ रही है, पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है पोजीशन नंबर 2 के ऊपर, फिर जो नेक्स्ट 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आ रहे हैं 4 के ऊपर, मतलब 2 4 4। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के मुताबिक सही नंबरिंग ये है 1 5 5। इसका मतलब है कि हम नंबरिंग करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो एंटी क्लॉकवाइज में मैंने लिखा था उसको मैं इरेज कर लेता हूं। ये रहा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला नंबरिंग जो मैंने इरेज कर दिया। तो जो सही नंबरिंग है वो है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम नेम स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 इथाइल, 5 5 डाइमिथाइल, साइक्लो हेग्स, 1 ईन। इसमें आप देखें सेकेंडरी प्रीफिक्स आ रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स आ रहा है, वर्ड रूट आ रहा है और उसके अलावा प्राइमरी सफिक्स आ रहा है। सिर्फ एक सेकेंडरी सफिक्स एब्सेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए आप कि एक कंपाउंड जिसमें साइक्लिक चेन है और साथ में एक साइड चेन है या ओपन चेन है, उसमें हम पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके लिए क्या रूल्स हैं। तो इसके लिए रूल ये है कि अगर एक रिंग में, मतलब साइक्लिक चेन में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है एज कंपेयर टू द साइड चेन और ओपन चेन। जैसे देखिए कि एक साइक्लिक रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो अगर कम है एज कंपेयर टू द साइड चेन, तो क्या होगा, द कंपाउंड विल बी नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो जो साइड चेन है, दैट साइड चेन विल एक्ट एज द पेरेंट चेन। or we can say the open chain will act as the parent chain। और अगर ओपन चेन पेरेंट चेन बन गई तो वो जो साइक्लिक रिंग है वो क्या होगा,
that will act as the substituent. The ring or the cyclic chain will be treated as the cycloalkyl substituent in this case. और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स साइड चेन से कम नहीं है, मतलब उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो फिर हम इस कंपाउंड को साइक्लोएल्केन का डेरिवेटिव मानेंगे। मतलब इस केस में जो साइक्लिक चेन होगी या रिंग होगी, दैट रिंग विल एक्ट एज द पेरेंट चेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है व्हाइल सिलेक्टिंग द पेरेंट चेन in such compounds. Let us explain it with the help of some examples. जैसे इस पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें एक रिंग है। इस रिंग के अंदर आप देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं। There are 5 कार्बन एटम्स in the ring. और अगर हम देखें कि इस साइड चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, तो साइड चेन में कार्बन एटम्स हैं 7। तो जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है एज कंपेयर टू द साइड चेन, तो क्या होगा इस केस में, ये जो साइड चेन है या ये जो ओपन चेन है, इस ओपन चेन को हम पेरेंट चेन मान लेंगे। और अगर ये पेरेंट चेन है तो ये साइक्लिक रिंग क्या बन गई? द साइक्लिक रिंग विल एक्ट एज द सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम जो साइक्लिक है, तो इस साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा साइक्लोपेंटाइल। जनरल नेम में हम कहते हैं साइक्लोएल्काइल। और यहाँ पर चूंकि 5 कार्बन की रिंग है तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाइल। और ये साइक्लोपेंटाइल माना जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और पेरेंट चेन यहाँ पर क्या आ गई? ये जो 7 कार्बन एटम्स की ओपन चेन है, इट विल बिहेव एज द पेरेंट चेन। अब आप जानते हैं जब ओपन चेन पेरेंट चेन हो उसमें नेमिंग कैसे की जाती है। हम इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। इन दिस वे 7 कार्बन एटम्स की नंबरिंग हमने कर ली। उसके बाद जब हम नाम लिखेंगे तो नाम में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, तो वो आ जाएगा 2 साइक्लोपेंटाइल। दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पेरेंट चेन यहाँ पर है वो साइक्लिक नहीं है, मतलब इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा है। डायरेक्टली हम वर्ड रूट पे आ जाते हैं। और वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट होगा हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है पेरेंट चेन में। और प्राइमरी सफिक्स होगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स चूंकि एब्सेंट है तो नाम बन गया 2 साइक्लोपेंटाइल हेप्टेन। ये तो पहला केस था। पहला केस मतलब जहां पर साइक्लिक रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम थे एज कंपेयर टू द साइड चेन और ओपन चेन। तो यहां पर हमने रिंग को पेरेंट चेन नहीं माना। लेकिन अगर इस केस में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिंग है उसमें भी 5 कार्बन एटम्स हैं, और जो साइड चेन है या ओपन चेन है उसमें भी 5 कार्बन एटम्स हैं, मतलब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने रिंग को ही पेरेंट चेन मानना है। So the cyclic chain is regarded as the parent chain, and the side chain, that is the open chain, will act as the substituent in this case. अब यहाँ पर आप देखिए जो साइक्लिक चेन है उसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, जो पेरेंट चेन हमारी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में बात की, इसमें हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम को हर हाल में नंबर
1 ही मिलना है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। तो ये 1 आ गया। उसके बाद 2 हम चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट एक ही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम कैसे दिया जाएगा, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप जरा गौर कीजिएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें भी आप देखिए कि इसमें जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक चेन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो साइड चेन है उसमें 5 ही कार्बन एटम्स हैं और रिंग में भी 5 ही कार्बन एटम्स हैं। तो पेरेंट चेन तो दोनों में सेम बन रही है, दैट इज साइक्लिक। उसकी नंबरिंग की हालांकि जरूरत नहीं है, बट मैंने कर ली नंबरिंग। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ इन दोनों केसेस में जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या आएगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम जैसे आप देख सकते हैं, दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूएंट में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पहले केस में जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर 2 अगर हम एक एंड से शुरू करें, जैसे यहां से अगर हम शुरू करें, सब्स्टिट्यूएंट के एटम्स को अगर हम नंबरिंग दे दें, तो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर 2 अटैच्ड है विद द पेरेंट चेन। जबकि इस दूसरे केस में आप देखिए, अगर मैं साइड चेन को नंबरिंग देता हूं तो इस सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन नंबर 1 अटैच्ड है पेरेंट चेन के साथ। मतलब इन दोनों केसेस में जो सब्स्टिट्यूएंट है, हालांकि उसका फॉर्मूला सेम है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस में हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे देना है? ऐसे केसेस में हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस तरह से देना है, टू पेंटाइल। यहां पर जो ये हमने 2 लिखा है, इस 2 पर जरा आप गौर कीजिएगा। ये 2 जो है ये पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि इस पेंटाइल का कार्बन नंबर 2 है, दैट इज अटैच्ड विद द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का तो नंबर 1 ही है और वो लिखने की जरूरत भी नहीं है इस केस में, लेकिन ये जो 2 हमने लिखा है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है द कार्बन एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इट मीन्स द सेकेंड कार्बन ऑफ द पेंटाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द पेरेंट चेन। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया इस केस में। और ये जो दूसरा केस है, यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा? इसका नाम आएगा 1 पेंटाइल, और ये भी ब्रैकेट के अंदर हमने लिखना है। सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स इन दीज 2 एग्जांपल्स इज 2 पेंटाइल एंड 1 पेंटाइल। अब हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लिया विद इन द ब्रैकेट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स हम लिखेंगे। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स तो यूज होगा क्योंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें जो हमारी पेरेंट चेन है वो साइक्लिक है। साइक्लो और साइक्लो के बाद यूज होगा पेंटेन। दूसरे केस में भी उसी तरह से साइक्लोपेंटेन। तो इन दोनों में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट के अंदर था। क्या डिफरेंस था? एक केस में सब्स्टिट्यूएंट 2 पेंटाइल था, दूसरे केस में 1 पेंटाइल था। इसकी एक और तीसरी एग्जांपल भी बन सकती थी। अगर मान लो कि ये जो तीसरा कार्बन है, अगर ये अटैच्ड होता पेरेंट चेन के साथ, तो फिर उस केस में सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता 3 पेंटाइल। अब इस नेक्स्ट केस में आप देखिए, इस केस में भी आप देखिए कि जो हमारी साइक्लिक चेन है उसमें 5 कार्बन एटम्स है, और जो इसके साथ ओपन चेन या साइड चेन जो अटैच है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ 4 है। मतलब कि यहाँ पर साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम पेरेंट चेन उसी को मानेंगे। किसको? साइक्लिक चेन को हम पेरेंट चेन मानेंगे। और इसमें फिर से हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है पेरेंट चेन में। क्यों नंबरिंग करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। सो साइक्लिक चेन इज द पेरेंट चेन एंड नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट में चूंकि 4 कार्बन है, इसका नाम ब्यूटाइल होगा, बट
ब्यूटाइल, खाली ब्यूटाइल हम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, पहले हम उस ब्यूटाइल की नंबरिंग कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड। देखिए हमने राइट साइड से इसकी नंबरिंग नहीं की, क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करते तो इस कार्बन को जो पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है उस कार्बन को नंबर 3 मिलता, लेकिन हमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की ताकि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ जाएगा 2 ब्यूटाइल, और ये नाम ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा 2 ब्यूटाइल, और उसके बाद साइक्लो पेंटेन। और इस एग्जांपल में अब जरा आप चेक कर लीजिए, इसमें भी हमारी जो पेरेंट चेन होगी वो साइक्लिक रिंग होगी, और जो इसमें ओपन चेन होगी दैट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें अगेन नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम इस केस में बताइए क्या होगा। यस, इट विल बी 1 ब्यूटाइल, जिसको हम लिखेंगे विद इन द ब्रैकेट्स 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, इसका IUPAC नेम बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हमने कैसे की ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर किसी केस में साइड चेन के अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड है या फिर फंक्शनल ग्रुप है, इन केस द साइड चेन कंटेन्स ए मल्टीपल बॉन्ड और ए फंक्शनल ग्रुप, फिर क्या होगा, देन द एलिसाइक्लिक रिंग विल बी ट्रीटेड एज द साइड चेन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। ये जो अभी हम साइज की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, और अगर इक्वल होंगे टू द साइड चेन या ज्यादा होंगे साइड चेन से तो फिर हम उसी को मानेंगे, मतलब साइक्लिक चेन को ही मानेंगे पेरेंट चेन। बट अब अगर कहीं पर साइड चेन के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड हो या फिर साइड चेन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, उस केस में हमने जो एलिसाइक्लिक रिंग है उसको हमने क्या मानना है, उसको हमने साइड चेन मानना है। फिर हमने साइज नहीं देखना, मतलब यहां पर हम कंपेयर नहीं करेंगे कि रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं और साइड चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उस चीज को फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि हम किसको पेरेंट चेन मानेंगे, हम साइड चेन को ही पेरेंट चेन मानेंगे और रिंग को हम एज साइड चेन मान लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखिए, इस केस में अगर हम गौर से देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इस साइक्लिक रिंग में ज्यादा है, 5 कार्बन एटम्स हैं, जबकि ओपन चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन एटम्स हैं। लेकिन इस साइड चेन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसी को हम मानेंगे पेरेंट चेन, और ये जो साइक्लिक रिंग है यहाँ पर इट विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। अब जरा देखिए आप कि ये जो हमारी पेरेंट चेन इस केस में है ओपन चेन, इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम ऑफ कोर्स राइट साइड से करेंगे। राइट साइड से इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है, तो ये होगी नंबरिंग। उसके बाद जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम में थ्री साइक्लोपेंटाइल या गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स तो यहाँ पर नहीं आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स रिमेंबर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पेरेंट चेन है वो ओपन चेन है। यहाँ पर ये जो साइक्लिक चेन है, ये साइक्लिक चेन ये इस केस में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इस केस में यूज नहीं हो रहा है। तो वर्ड रूट यूज होगा प्रोप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यूज होगा 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है और सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो ये आ गया 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोप 1 इन। तो दूसरा केस जो यहां पर आप देख सकते हैं, इस केस में जो रिंग है उसमें 6 कार्बन है, साइड चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन एटम है, लेकिन साइड चेन में आप देख सकते हैं एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है CHO, जो रिंग के साथ अटैच्ड नहीं है डायरेक्टली,
बल्कि ये साइड चेन के ही एक कार्बन के साथ अटैच है। ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ऐसे केस में भी हम ये नहीं देखेंगे कि कार्बन एटम कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। यहाँ पर हम सीधा साइड चेन को पैरेट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो साइड चेन या ओपन चेन जब पैरेट चेन बन गई तो ये जो रिंग बन गई, रिंग विल बिहेव एज द सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल होगा। अब पैरेंट चेन की हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप जानते हैं कहाँ से होनी चाहिए, राइट साइड से, क्योंकि वहाँ से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लीस्ट नंबर मिल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग, और नाम होगा 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद प्रोप, एन और अल। यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स अल यूज होता है। और उसके लिए हमने पोजीशन भी मेंशन नहीं की, क्योंकि एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी पोजीशन हर हाल में 1 ही आती है। तो नाम बन गया 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनल। अब नेक्स्ट केस देखिए, if more than one alicyclic rings are attached to the single chain of carbon atoms, मतलब एक ओपन चेन है कार्बन एटम्स की, उसके साथ एक से ज्यादा रिंग्स अटैच्ड हैं। अभी तक तो जो केसेस हमने डिस्कस किए उनमें सिर्फ एक ही साइक्लिक रिंग थी, लेकिन यहाँ पर एक ही ओपन चेन के साथ एक से ज्यादा रिंग्स अगर अटैच्ड हैं, फिर क्या करेंगे? फिर हम इस कंपाउंड को हम मानेंगे साइक्लो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि यहाँ पर हम एल्केन को, मतलब ओपन चेन को पैरेंट चेन मानेंगे। The open chain will be regarded as the parent chain, और जो रिंग्स होंगी they will behave as the substituent। एक और पॉइंट यहां पर आप नोट कर लीजिए, वट एवर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग्स और द कार्बन एटम चेन, यहां पर भी हमने ये नहीं देखना है कि रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं या जो ओपन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ हमने ये देखना है कि एक कार्बन चेन के साथ एक से ज्यादा रिंग्स अगर अटैच्ड हैं तो फिर उन रिंग्स को हम पैरेट चेन नहीं मानेंगे, बल्कि उनको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। और जो ओपन चेन होगी, चाहे उसमें एक ही कार्बन क्यों ना हो, जो ओपन चेन वाला जो केस होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज द पैरेट चेन। जैसे इस केस में आप देखिए, इस केस में जो हमारे पास ओपन चेन है, या मैं कहूँगा जो साइड चेन है, उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। ये देखिए 3 कार्बन एटम्स हैं, और इस 3 कार्बन एटम्स की रिंग के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 रिंग्स अटैच्ड हैं। एक ये रिंग है, दूसरी ये रिंग है। रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में 3-3 है। जो ओपन चेन हमारी है उसमें भी 3 कार्बन एटम्स हैं। वो चीज़ हमने नहीं देखनी है कार्बन एटम किस में कितने हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि 2 साइक्लिक रिंग्स अटैच्ड हैं। तो हमने क्या करना है, उन साइक्लिक रिंग्स को हमने सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। और पैरेट चेन किसको मानेंगे? पैरेट चेन हम मानेंगे इस साइड चेन को, मतलब इस ओपन चेन को। तो ये बन गई हमारी पैरेंट चेन। और इस पैरेंट चेन की अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी साइड से नंबरिंग करो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 3 आ रही है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम भी हैं। तो सीधा नाम शुरू कर देते हैं। नाम क्या आ जाएगा? 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट है, और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? दे आर साइक्लोप्रोपाइल। चूंकि 2 है तो हम कहेंगे 1,3 डाई साइक्लोप्रोपाइल। ये आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक चेन को हमने पैरेंट चेन नहीं माना था। तो फिर वर्ड रूट आ जाएगा। वर्ड रूट हो गया प्रोप, और प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, और सेकेंडरी सफिक्स चूंकि एब्सेंट है तो नाम बन गया 2,1,3,1,3 डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। इसी तरह इस केस में आप देखिए, इस केस में भी 2 साइक्लिक रिंग्स है,
जिनमें 5 कार्बन एटम्स हैं और वो अटैच्ड हैं एक ओपन चेन के साथ। उस ओपन चेन में ऑल्दो 3 ही कार्बन है, बट जैसे हमने बात की कि नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर मैटर नहीं करता, वी हैव टू टेक द ओपन चेन एज द पेरेंट चेन। और ये जो रिंग्स होंगी दे विल बिहेव एज द सब्स्टिट्यूएंट। ये साइक्लोपेंटाइल रिंग्स हैं 2 विच विल बिहेव एज द सब्स्टिट्यूएंट्स। और यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं ओपन पेरेंट चेन की, और नाम आ जाएगा 1 3 डाई साइक्लोपेंटाइल propane. Okay. Next, if a compound contains an alicyclic ring directly attached to the benzene ring, मतलब एक एलिसाइक्लिक रिंग है, एलिफेटिक साइक्लिक रिंग है, और वो किसके साथ अटैच्ड है, एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, इट विल बी नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब यहाँ पर हमने एलिसाइक्लिक रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है और बेंजीन को हमने एज पेरेंट चेन मानना है। और यहाँ पर नाम कैसे आएगा वो हम देखते हैं। जैसे इस केस में आप देखिए, एक तरफ एलिसाइक्लिक रिंग है, एक तरफ बेंजीन रिंग है। द एलिसाइक्लिक रिंग विल बिहेव एज द सब्स्टिट्यूएंट, बेंजीन विल बी द मेन चेन और पेरेंट चेन। अब बेंजीन की नेमिंग कैसे होती है वो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाम क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। साइक्लोहेक्साइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन में IUPAC सिस्टम में भी नाम बेंजीन ही आता है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब जरा देखिए, इन सम केसेस द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द रिंग। मतलब जो हमारी साइक्लिक रिंग है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। मान लीजिए साथ में कोई मल्टीपल बॉन्ड भी है और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में जो रिंग होगी वो पेरेंट चेन होगी ऑफ कोर्स, और उसमें नंबरिंग के वक्त हमने ध्यान रखना है कि नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। प्रायोरिटीज जैसे आप जानते हैं शिफ्ट हो जाती है। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको मिलती है, नंबरिंग में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को मिलती है। अभी तक हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर चूंकि रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को या सब्स्टिट्यूएंट को क्या पोजीशन मिल रही है। जैसे इस केस में आप देखिए, यहाँ पर NH2 ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, साथ में एक CH3 ग्रुप भी है विच इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है रिंग में, उसी कार्बन को हम नंबर 1 दे देते हैं। इसको हमने नंबर 1 दे दिया। अब नंबर 2 कहां से आना चाहिए, ऑफ कोर्स राइट साइड से आना चाहिए, ताकि सब्स्टिट्यूएंट को भी लोवेस्ट पॉसिबल मिल सके। इस तरह से नंबरिंग हो गई। अब हम नेमिंग शुरू करते हैं। नेमिंग में हमने क्या करना है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया 3 मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो। वर्ड रूट आ गया हेक्स। प्राइमरी सफिक्स आ गया एन, और सेकेंडरी सफिक्स आ गया वन अमाइन। क्योंकि ये 1 के साथ जुड़ा हुआ है, पोजीशन नंबर 1 है अमाइन की, ये सेकेंडरी सफिक्स है इस केस में, तो 1 अमाइन आ गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। एक और चीज यहाँ पर वो ये है कि ये जो ई था, ये ई जो था प्राइमरी सफिक्स का, वो हमने रिमूव कर दिया क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स में ए आ रहा था, इस वजह से हमने ये ई रिमूव कर दिया। इस तरह से नाम बन गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। अगला केस है, इस केस में आप देखिए एक फंक्शनल ग्रुप भी है जो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड भी है और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो पेरेंट चेन तो क्लियर है कि यहाँ पर जो रिंग है वही पेरेंट चेन है। अब हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग में सबसे पहले हमने किसको देखना है, हमने
फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को देखना है कि वो लोवेस्ट आनी चाहिए, तो हम शुरू करेंगे इस पोजीशन से। आगे नंबर 1। अब नंबर 2 हम कहाँ से, क्या हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें? इसमें हमने क्या देखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड की तरफ हमने पहले जाना है, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। ये आ गया नंबर 2, फिर आ गया 3 और फिर 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा 5-मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स ऑफ कोर्स यहाँ पर भी लगेगा, साइक्लो। वर्ड रूट होगा हेग्स, क्योंकि जो हमारी रिंग यहाँ पर है पैरेट चेन, उसमें 6 कार्बन है, हेग्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर होगा इन, उसकी पोजीशन भी लिखेंगे 2 इन। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा 1 ओल, और ये जो प्राइमरी सफिक्स का ई है उसको हमने रिमूव कर दिया। इस तरह से IUPAC नेम आ गया 5-मिथाइल cyclohexes 2-ene 1-ol. Now in case the functional group that is directly attached to the ring contains a carbon atom. अब पिछले केसेस में तो हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप अटैच था रिंग के साथ, लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप क्या थे? वो NH2 था या OH था जिनमें कार्बन एटम नहीं होता। अब उन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं जिन फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर कार्बन एटम होता है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में सुटेबल सफिक्सेस हमने यूज करने हैं उन फंक्शनल ग्रुप्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, साइनाइड या नाइट्राइल है, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड है, ईस्टर है। ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब इनमें चूंकि कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं एक रिंग के साथ। तो यहां पर हमने क्या करना है? रिंग को हमने पैरेंट चेन मानना है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा वो पैरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं होगा। रिमेंबर, ऐसा केस हमने पहले भी पढ़ा था जहां पर फंक्शनल ग्रुप है और ये सारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इनमें कार्बन है, लेकिन ये पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज फंक्शनल ग्रुप बट देयर कार्बन एटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन। इस केस में हम जो यूजुअल सेकेंडरी सफिक्स है वो यूज नहीं करते, बल्कि स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड, नाइट्राइल के लिए हम यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनाइल क्लोराइड, एसिड अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, और ईस्टर के लिए सबसे पहले तो R मतलब एल्काइल ग्रुप का नाम आता है बिफोर द सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पर लगता है कार्बोक्सिलेट। तो ये वो स्पेशल सफिक्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पर यूज होंगे। लेट अस टेक ए फ्यू एग्जांपल्स। जैसे इस कंपाउंड में आप देखिए, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है विच इज ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द पैरेंट चेन। पैरेंट चेन मीन्स द साइक्लिक चेन। अब रूल ये है कि जैसे हम आमतौर पे एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बन जो होता है उसको हम आमतौर पे पैरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो जो हमारी पैरेंट चेन है वो सिर्फ 6 कार्बन आइटम्स की जो रिंग है वही पैरेंट चेन है। अब चूंकि उसके साथ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसके अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें उसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी कार्बन को हर हाल में नंबर 1 ही मिलना है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? नेमिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर आएगा नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स तो डेफिनेटली यूज होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? ऑफ कोर्स साइक्लो है। उसके बाद वर्ड रूट यहाँ पर क्या है? हेग्स है, क्योंकि 6 कार्बन है इस रिंग में। प्राइमरी सफिक्स वो एन है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए रिमेंबर अल यूज नहीं होगा। अल तब यूज होता है जब एल्डिहाइड का कार्बन पैरेंट चेन का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हिस्सा नहीं है तो इसका नाम आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में कार्बल्डिहाइड।
तो नाम बन गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कंपाउंड में यहाँ पर ईस्टर है फंक्शनल ग्रुप, और ईस्टर में आप जानते हैं कि ये जो R पार्ट होता है, मतलब ये C2H5 पार्ट, इसका नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स से पहले मतलब इन द बिगिनिंग आता है, तो इसका नाम है इथाइल। ये आ गया इथाइल। उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स से स्टार्ट करेंगे। साइक्लो, फिर वर्ड रूट आ गया हेक्स, फिर आ गया प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलेट। तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। और इस कंपाउंड में आप देखिए यहाँ पर हमें नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। नंबरिंग क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज यहाँ पर इस साइक्लिक रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो नंबरिंग में हम नंबर 1 तो इस कार्बन को देंगे जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद राइट साइड से स्टार्ट करेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। और अब जब नेमिंग स्टार्ट होगी तो नेमिंग में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स है 3 नाइट्रो। और उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स वो है साइक्लो, वर्ड रूट है हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा यहाँ पर 2 इन, चूंकि 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। और उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से नाम बन गया 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम इन कंपाउंड्स के नाम देंगे जिनमें एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा डायरेक्टली एक रिंग के साथ। इन सभी में आप देख सकते हैं हमने स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज की है। अब आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप सॉल्व करेंगे इन सारे रूल्स को अप्लाई करके जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसका नाम आप लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। 3 एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इन सभी के नेम्स आप लिखेंगे IUPAC नेम्स फॉलोइंग द रूल्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इनके आंसर्स आप चाहें तो इस वीडियो के साथ जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप इनके आंसर पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।